الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل۔ میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارا سرشٹی کرتا ہے، وہی ست ایشور ہے، ست اللہ وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو اس کا ساجیدار مت بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نج رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی، سمجھ رہے ہیں نا، والجار ذی القربى والجار الجنب، پڑوسی یا اجنبی پڑوسی، قریبی پڑوسی ہو یا اجنبی پڑوسی، اور پہلو کے ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والے، اور مسافر، اور اپنے غلام بادیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو، سمجھے نا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ قریب کا پڑوسی ہو یا اجنبی پڑوسی ہو، جو ہے سمجھ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنے کا سلوک، اچھا سلوک کرنے کا حکم کیا گیا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہم اچھا ویوہار کریں، اچھا ان کے ساتھ ہم سلوک کریں۔ تو قرآن کی آیت سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی۔ میرے دوستو، پڑوسی جو ہے، دیکھیے میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پڑوس کا جو فائدہ ہوتا ہے، آدمی کیوں ایک ساتھ کہیں گھر بناتے ہیں، ایک بستی جو ہے ایک بستی جو ہے قائم ہوتی ہے نا، ہم پڑوس میں بسنے کی یا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مطلب کیا ہے کہ ایک انسیت ہو، آپس میں ایک محبت ہو، اور دکھ درد میں ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ کوئی پریشانی ہے، آپ گھر پہ نہیں ہیں، ہم گھر پہ نہیں ہیں، ہے نا، تو پڑوس کے لوگ جو ہے وہ ہمارے بچوں کی ریکھ دیکھ کر سکیں، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ پڑوس کا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں، تو پڑوس کے لوگ جو ہے اس کا تعاون کرتے ہیں، وہاں سے کھانا آ جائے گا، آپ کھا لیں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے کہیں رہیں گے تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو پڑوس میں بسنے کا یا ایک ساتھ جو ہے جو ہم رہتے ہیں، جو ہمارے رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، چاہے شہر ہوں یا گاؤں ہوں نا، دیہات ہوں، کہیں بھی، تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے ایک دوسرے کے ہنسی، کیا ہے خوشی غمی، ہر ایک میں ہم شامل ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک رہیں گے۔ تو اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اب پڑوس جو ہے، پڑوسی چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، دونوں شامل ہیں اس میں۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ جار کا جو لفظ ہے، حدیث میں سناؤں گا آپ کو، تو جار کا جو لفظ ہے، جار کے معنی پڑوسی، تو وہ مطلق ہے، اس میں نہیں کہا گیا کہ مسلم پڑوسی غیر مسلم پڑوسی، پڑوسی ہے آپ کا، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کرنا چاہیے، اسے نصیحتیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی نصیحت، آپ کے ویوہار، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کا جو پڑوسی ہے اسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اسے آپ اچھا پڑوسی بنیے۔ آپ کوشش کیجئے، اگر آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے، آپ اکیلے ہیں وہاں، تو آپ اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیجئے ان کے سامنے کہ وہ آپ کی بات ماننے پہ وہ مجبور ہو جائیں، آپ کی نصیحت سننے پہ مجبور ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ایک دن ان کے دل میں، اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے دعوت کا، اگر آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کو، آپ کو موقع مل گیا کہ چلو یار ان کو ہم دعوت دیں، کرنا چاہیے،
लोगों को। कहने से आपकी इज्जत नहीं घटेगी। आपके पड़ोसी को आपने कह दिया भाई देखो ये इस्लाम ऐसा धर्म है या ये ईश्वरीय धर्म है, ये सच्चा मजहब है, सच्चा दीन है, तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, सुनने वाले को बुरा नहीं लगेगा। आपने कोई किताब ही दे दिया, उसको पढ़ेगा, वो हो सकता है उसके आज नहीं कल 1 साल 2 साल में उसके दिमाग में वो चीज आए। तो हमें अपने अखलाक को बेहतर बना के, खास तौर से अगर हमारे पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं तो हमने अपने आप को आप साबित कीजिए कि मैं मुसलमान हूं, और ये मानने पर मजबूर हो जाए कि वाकई में मुसलमान ये होता है, ये है मुसलमान और ये मोमिन लोग हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा मेरे दोस्तों, है ना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप बहुत ही बड़े अज्र के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अज्र से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है उसमें आपने फरमाया कि मा ज़ाल जिब्रील युसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिकुहु। समझ रहे हैं ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिब्रील जो है पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक की हमेशा ताकीद करते रहे, यहां तक कि मैं गुमान करने लगा कि उसे वरासत में भी शरीक ठहरा देंगे। यानी जिब्रील आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब आते थे, समझ रहे ना, तो वो इस तरह से नसीहत करते थे उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, यानी उसके पड़ोस के बारे में, पड़ोसी के बारे में बार बार जो है ताकीद करते रहे। आप वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक की हमेशा ताकीद करते रहे, हमेशा ताकीद करते रहे। मा ज़ाला जिब्रील युसीनी बिल जार, उसके साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों की खबरगिरी करो, पड़ोसियों के साथ, समझ रहे ना, उनके दुख दर्द में शामिल, मतलब जो चीजें हो सकती हैं पड़ोसी के ताल्लुक से, वो जिब्रील जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ताकीद करते रहते थे, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये सोचने लगा, मुझे गुमान हुआ कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे वरासत में भी शरीक ठहरा दें, कि भाई जो तरका है, अगर मैयत के इंतकाल, कोई आदमी इंतकाल कर गया तो उसका इंतकाल के बाद जो उसका माल बचता है, जो तरका जिसको हम बोलते हैं, जिसके जो वरासत जिसको हम अपने लफ्जों में बोलते हैं, कि वो तकसीम होती है उसके बच्चों में, बीवी है, सब में, तो ऐसा ना हो कि उसके पड़ोसी के मरने पर दूसरे पड़ोसी को भी क्या उसके वरासत की तकसीम में उसको भी शामिल किया जाए, कि भाई उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच लिया था, क्योंकि इतनी ताकीद की थी जो है पड़ोसी के बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। इसी तरह मेरे दोस्तों दूसरी रिवायत है हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा ज़र इजा तबख्ता मरकतन फअक्सिर माअहा व तआहद जीरानका। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ए अबू ज़र, जब तुम शोरबे वाला सालन पकाओ, मर्क समझ रहे ना, शोरबा, जब तुम शोरबा वाला सालन पकाओ, जैसे हम लोग गोश्त है, मछली वगैरह पकाते हैं, है ना, तो उसमें पानी ज्यादा कर लो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। मान लीजिए अगर कम है मिकदार में कोई चीज, तो थोड़ा सा पानी ही बढ़ा दो, है ना, और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो तुम, है, यानी उनको भी उसको दो ले जा करके, उसमें से जो चीज तुम पका रहे हो अपने पड़ोसी के यहाँ भी उसको पहुंचाओ। और मुस्लिम ही की एक रिवायत है, उसके अल्फाज ये हैं, है तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि औसानी इन्ना खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी, मेरे खलील यानी दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद फरमाई कि जब तुम शोरबे वाला सालन पकाओ तो उसमें पानी ज्यादा कर लो, फिर अपने पड़ोसियों के घर वालों को देखो और उनको भलाई के साथ उनमें से कुछ हिस्सा पहुंचाओ। समझ रहे हैं ना। ये तालीम है मेरे दोस्तों हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप जब कुछ सालन बनाएं तो आप क्या है उसको, उसमें अगर कुछ कम लग रहा है आपको गोश्त या कोई चीज है ज्यादा मिकदार में है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, नहीं तो थोड़ा सा आप उसमें सालन बढ़ा दें और अपने पड़ोसी के यहाँ भी उसको आप पहुंचा दें जो है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम है दोस्त। इससे क्या है ना, कि आदमी के अंदर एक उल्फत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होगी इससे, बाहम जो है
कोई रंजिश नहीं पैदा होने पाएगी। और हदिया का सबसे बड़ा फायदा, जैसा कि एक हदीस में है, उसका मफहूम यह है कि तुम हदिया दो, यानी इसका लेन देन करो, तहादु तहाबु, हदिया दो एक दूसरे को, और इससे क्या है, तुम आपस में तुम्हें मोहब्बत पैदा होगी जो है। तो हदाया जो है, गिफ्ट अगर आप किसी को देते हैं तो आप हकीकत में आप देखिए, अगर आप किसी को गिफ्ट दिए तो खुश होता है वो, समझ रहे हैं ना, और इससे एक मोहब्बत पैदा होती है, आदमी समझता है कि इसको मुझसे लगाव है। तो मामूली ही चीज क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, तो हमें इस चीज को देना चाहिए। खास तौर से अपने पड़ोसियों का हमें ऐसी चीजों में ख्याल करना चाहिए। अगर खास तौर से मेरे दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी गरीब और मिस्कीन है ना, अगर गरीब मिस्कीन पड़ोसी हैं तो उन्हें क्या है, इस तरह से ख्याल उनका ज्यादा करना चाहिए कि आप अच्छा अच्छा खा रहे हैं और बेचारे लोग तरस रहे हैं, कहीं 2-2 4-4 महीने में उन्हें गोश्त नसीब नहीं होता, या ऐसी कोई चीज, अच्छी चीज नहीं खाने को मिलती। समय हालात मेरे दोस्तों सबके बराबर नहीं रहते, है ना। आप आज ऐसे भी आप देख लीजिए, इस रमजान में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छा अच्छा पकवान जिनके घर में होता होगा, कुछ ऐसे भी मुसलमान होंगे और हैं भी, समझ रहे हैं ना, कि बेचारों को मामूली चीजों पे इक्तफा करना पड़ता होगा। रोटी सब्जी कुछ बना लिया, चावल है उसके साथ कुछ दाल या ऐसी सब्जी तरकारी, और वही बगल पड़ोस में आप देख लीजिए तो 10 किस्म का पकवान पक रहा है, बिरयानी है, समझ रहे हैं ना, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते हैं उस चीज को। इफ्तारी में जो एहतमाम होता है, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकौड़ियाँ हैं और चने हैं और क्या है और क्या है, दुनिया भर की चीज, और बगल में एक गरीब आदमी सिर्फ पानी और रोटी और सब्जी पे इक्तफा करता है। तो हमें ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए। हकीकत बता रहा हूं कि अल्लाह सबको इस पर अमल की तौफीक दे। मैं नहीं कहता कि मैं सुना रहा हूं तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, मैं सुना रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की बात है, पहुंचाना चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह से अपने लिए भी तौफीक मांगता हूं सबसे पहले कि रब्बुल आलमीन मुझे भी इस बात की तौफीक दे कि ये चीज कहने तक महदूद ना रहे, मैं भी उस पर अमल करूं मुकम्मल तौर से, समझ रहे हैं, और अल्लाह हर मुसलमान को इसकी तौफीक अता फरमाए। तो अगर गरीब पड़ोसी है मेरे दोस्तों, मिस्कीन है, तो बदरज औला जो है उनका खास ख्याल रखा जाए, है ना। आपके पड़ोस में है तो ऐसा ना हो कि आप अच्छा अच्छा खा लें, बेचारा उसको कुछ मैसर ना हो, तो हमें उसकी रियायत करनी चाहिए। ये इस्लाम है मेरे दोस्तों, इस्लाम की तालीम दी है, समझ, इस्लाम ने इसकी हमें तालीम दी है, समझ रहे हैं ना। और अगर कोई गरीब आदमी ही हो, अगर गरीब पड़ोसी है तो कोई बात नहीं है, वो भी अगर हदिया देना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो दे तो उसमें हमें जो भी वो हदिया दे जो है तो उससे हमें उसको कबूल करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और इस सिलसिले में एक हदीस में सुनाऊं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है तो हुरैरा की रिवायत है, या निसा अल मुस्लिमात ला तहक़िरन जारतुन लिजारतिहा वलो फिर से नशातिन, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ऐ मुसलमानों की औरतों, ऐ मुसलमानों की औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए कोई हदिया कमतर ना समझे, है ना। अगरचे वो हदिया जो आया हो उसके घर से, पड़ोसन के घर से, बकरी का खुर ही हो, अगर उसने बकरी का खुर बनाया, जिसको आप पाया बोलते हैं, पाया बहुत लोग खाते हैं शौक से, अगर उसको ही उसने पका के भेजा है तो उसको हकीर और कमतर ना समझो, इसको, समझ रहे हैं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों की औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए कोई हदिया, है नी, यानी कमतर ना समझे, पड़ोसन के लिए कोई हदिया कमतर उसको ना समझे, अरे क्या दे दिया उसने, अगर चे वो बकरी का खुर ही हो। आप समझिए इस तालीम नबवी से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आप क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी इससे मालूम हुआ कि पड़ोसियों को चाहिए कि एक दूसरे को हदिया देते रहा करें। अमीर है तो अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक। गरीब ये ना सोचे कि यार मैं बहुत मामूली चीज है, मैं कैसे हदिया दूं, है ना, बिल्कुल नहीं। अगर उसके पास मामूली चीज, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर वो खुद ही मामूली चीज अगर पका के या जैसे भी जो चीज उसको मुयस्सर है, अगर वो गरीब आदमी की अपने मालदार पड़ोसी को, है ना, वो हदिया दे रहा हो तो उसे कबूल करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर वो इखलास से हो तो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, समझ रहे हैं। ये ना समझे कि मैं क्या दे रहा हूँ, बड़ी मामूली चीज है, बहुत
कोई इसकी अहमियत नहीं, बिल्कुल नहीं। और कबूल जिसके यहाँ हदिया दिया जा रहा है, वो गरीब दे रहा है, अगर मामूली चीज दे रहा है तो उसे जो है हकीर नहीं समझना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और अमीर जो अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया है तो अपने शायान शान वो दें, वो नहीं कि एक खुर पका के भेज दें, एक पाया दे दें। अमीर है, अल्लाह ने माल दिया है तो अपने शान के मुताबिक जो हैसियत उनकी है उस हैसियत के मुताबिक जो है उन्हें क्या है हदाया अपने पड़ोसियों को देना चाहिए। समझ ना। ऐसा नहीं होता कि भाई चलो ये चीज मुझे पसंद नहीं है, या नौज बिल्ला कोई बासी चीज पड़ी थी, या खाने में अपना दिल नहीं लगता, चलो किसी पड़ोसी के यहाँ भेज देते हैं, खा लेंगे वो लोग, हम लोगों को नहीं पसंद है यार, ले जाओ दे दो उनके यहाँ। इस नियत से मत दो जो है, ये बजाय कि सवाब के आपकी नियत पर सब कुछ अजर मिलता है, तो क्या अजर मिलेगा आपको इस पर अगर ऐसी चीजें कोई देता है, समझ रहे ना। तो इसमें एक तो चीज यहाँ इखलास नहीं होता, दूसरे पड़ोसी को आप हकीर समझते हैं कि जो आपको पसंद नहीं खाने पीने में, सड़ा बासी जैसा कुछ है, ले जाओ पड़ोसी के यहाँ दे आओ। तो एक तो इखलास खत्म हुआ, दूसरे आपने उसको हकीर समझा जो है। जबकि हदिया जो है दोस्तों, इसमें इखलास और मोहब्बत का इजहार होता है ना। इसमें किसी गरीब पड़ोसी के लिए कोई मिस्कीन पड़ोसी हो, है ना, तो उसमें क्या है, उसकी शान में क्या है, उसको हकीर समझना या उसको जलील यानी कमतर समझना जो है, ये जज्बा उसमें नहीं होता। तो किस काम का हदिया होगा वो, क्या उसके अल्लाह के उसको क्या उसकी मंजिलत, क्या मर्तबा उसको मिलेगा। तो ऐसी चीजों से इज्तनाब करने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना, कि सड़ी गली चीजें भी हम किसी को तोहफे तोहफ में ना दें कि आपको पसंद नहीं तो उधर दे दिया, बिल्कुल नहीं। अच्छी चीजें दो, जो आपको पसंद है थोड़ी ही दो, लेकिन अच्छी चीज हो। गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक और एक मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक जो है हदाया और तोहफे का लेन देन करें अपने पड़ोसियों के साथ। इसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। क्या कहा आपने? अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया, कीला मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है वो, कौन मोमिन नहीं जो आप फरमा रहे हैं। सवाल किया गया आपसे, पूछा गया, आपने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइक़हु। सुने ना, आपने फरमाया कि वो शख्स जिसकी शरारतों से, जिसकी बदमाशियों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी बदमाशी और जिसके क्या है शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है। वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला, 3 बार आपने कहा। एक इससे सख्त रिवायत मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामनु जारुहु बवाइक़हु। वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी अमन में ना हो। समझ रहे हैं, जिसकी शरारतों से महफूज ना हो, है ना, वो आदमी जिस पड़ोसी अगर मामून नहीं है, अमन में नहीं है, उसकी बदमाशी से, एक आदमी पड़ोसी बड़ी शरारत बदमाशी करता, तो ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, पड़ोस के बहुत हुकूक हैं और इसकी पासदारी बहुत जरूरी है और हमें उसका लिहाज करना चाहिए। इसी ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है, कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को, है ना, दीवार में लकड़ी या कील वगैरह गाड़ने से ना रोके। यानी अगर मुश्तरका दीवार है, एक ही दीवार है, उधर पड़ोसी है, एक बीच में दीवार है और इधर एक दूसरा आदमी रहता है, उधर दूसरा आदमी रहता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई कील गाड़ना चाहता है, कोई कांटी ठोकना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, तो उसको ना रोके उससे, समझ रहे हैं। यहां तक जो है ये हुक्म किया गया है। तो ये आमतौर से जैसे मान लीजिए जो ऐसे 2 पड़ोसी ऐसी जगह रहते हैं, है ना, जहां पे एक ही पुख्ता दीवार होती है, और वो उधर रहता है, एक आदमी इधर रहता है, तो अब दीवार जाहिर सी बात है, कुछ जरूरत पड़ती है आदमी को, कुछ कील ठोकना, कुछ और काम। तो अगर कोई ठोक रहा है तो दूसरा पड़ोसी उसे ना रोके। अगर एक ही दीवार है दोनों के बीच में तो उससे ना रोके, समझ रहे हैं ना, इससे मना किया गया है। आजकल तो आप देखें, अगर कोई आदमी ठोकना शुरू करे तो आवाज ही से झगड़ा शुरू कर लेंगे, अरे क्या यार परेशान कर रहे हो। ठीक है, जो कील ठोकना चाहता हो ऐसे वक्त में ना ठोके, है ना,
कि भाई आदमी वो लोग सो रहे हों बगल के लोग, या सोने के टाइम आराम के टाइम में, इसका भी ख्याल करे। लेकिन अब आदमी जाग रहा है ना, काम का वक्त है या सारे लोग बेदार हैं, उसे जरूरत है किसी एक कील की दीवार में ठोक दे कुछ उसमें लटकाने के लिए, रखने के लिए, तो दूसरे पड़ोसी को उससे रोकना नहीं चाहिए और उसे वहां शोर हंगामा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को ईजा ना पहुंचाए, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे, वरना खामोश रहे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ईमान के समरात का बयान है इस हदीस में, जिसमें ये बताया गया कि आदमी के ईमान से मुताल्लिक ये चीज है, जिसका ईमान है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, उसका हक ये बनता है कि अपने पड़ोस को, अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से और दूसरी एक रिवायत में है, फल्युहसिन इला जारिही, जो आदमी आखिरत के, अल्लाह और आखिरत दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। समझ रहे हैं ना। ये बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं। तो इन सारी चीजों से क्या मालूम होता है कि हमें जो है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, और जब आप ख्याल रखेंगे तो आप बेहतरीन पड़ोसी बनेंगे। समझ रहे हैं ना। इसीलिए मेरे दोस्तों एक रिवायत है कि 4 चीजें जो है सआदत की चीजें हैं, खुशबख्ती की चीजें हैं, यानी वो चीजें अगर किसी को मिल जाए तो इसका मतलब है कि आदमी का नसीब बहुत अच्छा है, आदमी सईद है, सआदतमंद है, खुशबख्त है। समझ रहे हैं ना। वो 4 चीजें क्या हैं, ये इब्न हिब्बान की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है अपनी सहीहा में। 4 चीजें कौन है? नेक औरत, कुशादा घर, नेक पड़ोसी और आरामदेह सवारी। समझ रहे हैं ना। ये 4 चीजें हैं, अगर जिसको ये मिल जाए तो आप समझिए को आदमी खुशबख्त है। नेक बीवी, कुशादा घर, नेक पड़ोसी और आरामदेह सवारी। समझ रहे हैं ना। तो नेक पड़ोसी मिलना, आपका पड़ोसी नेक हो, साले हो, तो आप समझिए कि आपकी खुशबख्ती की अलामत है कि आपको अच्छा पड़ोसी मिला है, आप खुशनसीब हैं। समझ रहे हैं। तो ये 4 चीजें जो इसमें बताई गई हैं कि नेक औरत है तो भी जाहिर सी बात है घर का माहौल अच्छा होगा, कुशादा घर है तो उसको अच्छा कहा गया है, खुशबख्ती की चीज है ये, है ना। सादत की बात है कि आदमी को तंग घर ना मिले, कुशादा घर मिले, आराम से रहे वो थोड़ा सा, है ना। इसी तरह से जो है नेक पड़ोसी, और इसी तरह से आरामदेह सवारी है, चाहे वो जानवरों की सवारी जो होती थी, आजकल गाड़ियों की सवारी है कि जिन पर सवार होकर के आदमी आराम से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। वो जानवर की सवारी है तो उसे तकलीफ ना दे, या गाड़ी वगैरह है, कार है, मोटर गाड़ी है, जो भी है, तो आराम से वो पहुंच जाए। तो आरामदेह सवारी भी जो है ये सादत की चीजों में से है। समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों एक अहम बात इस सिलसिले में है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली जारैने, बस मेरी बात इंशाअल्लाह खत्म हो रही है जल्दी। मेरे 2, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 2 पड़ोसी हैं, इन्ना ली जारैन, मेरे 2 पड़ोसी हैं, फैला अय्यहिमा उहदी, तो उनमें से मैं किसको हदिया भेजूं। 2 पड़ोसी हैं मेरे पास, इधर भी पड़ोस है, उधर भी पड़ोस है, इधर मान लीजिए वहां उनके घर के पास सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, आपका मकान है वहां 2 पड़ोसी हैं आपके। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 2 पड़ोसी हैं, उनमें से मैं किसको हदिया भेजूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इला अक़रबिहिमा मिनके बाबन, जिसका दरवाजा तेरे ज्यादा करीब हो। बुखारी की रिवायत, जिसका दरवाजा तेरे दरवाजे से ज्यादा करीब हो वो ज्यादा उसका मुस्तहिक है ना। यानी आपके घर से जो करीब हो, बहुत से पड़ोस हैं आपके, पड़ोस में लोग हैं, लेकिन जिसका दरवाजा आपके दरवाजे से करीब हो, समझ रहे हैं ना। आपके घर से उसका दरवाजा, बहुत से लोग होते बिल्कुल आपके घर के सामने है, एक थोड़ा दूर है, तो जो आपके घर के सामने है ना, उसका हक बनता है, अगर आपको कुछ हदिया देना है तो आपने कुछ पकाया है, कोई अच्छी चीज है तो आप उसके यहां पहुंचाए। ये समझ रहे हैं उस वक्त है
जब इंसान सब पड़ोसियों को हदिया देने की ताकत ना रखता हो, उसके पास इतनी उसात नहीं है, इतनी चीज नहीं है कि भाई हमारे 10 पड़ोसी हैं तो हम सबके यहाँ पहुंचा दें, इतना उसके पास सामान नहीं है, उसकी ताकत में ये चीज नहीं है कि सारे लोगों को दे सके, तो क्या करेगा? वो किसी एक को हदिया देना चाहता है, समझे ना, तो क्या करेगा? तो उसमें तरगीब ये तरतीब बताई गई कि अलकरब फलकरब का जो उसूल है कि जो सबसे ज्यादा करीब है उसका ख्याल किया जाए। तो ये उसूल बताया गया कि भाई जो तुम्हारे तेरे जिसका दरवाजा तुझसे ज्यादा करीब हो, अगर 10 को देने की ताकत हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, 10 को दिया जाए, लेकिन अगर हमारी ताकत सिर्फ 1-2 को देने की है तो जिनका दरवाजा हमारे से घर से करीब है उन्हें हम तरजीह देंगे और उन्हीं के यहाँ देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी हदीस आज के दर्स में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है और बड़ी अहम हदीस है मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल असहाब इंदल्लाह ताला खैरुहुम लिसाहिबिही व खैरुल जिरान इंदल्लाह ताला खैरुहुम लिजारिही। तिरमिजी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है, सहीह तिरमिजी में इसको उन्होंने जिक्र किया है और सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में भी इसको जिक्र किया है। हदीस का मफहूम यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ साथियों में सबसे बेहतर साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो, और पड़ोसियों में सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक में बेहतर हो, समझ रहे हैं ना। साथियों में जो अपने साथी के लिए बेहतर हो, साथी का लफ्ज़ आम है जिसमें सफर में, हजर में, घर पे बाहर साथ में सफर करते वक्त, इसमें सब साथी इसमें आ जाते हैं, शामिल हैं, है ना। जो आपका साथ सफर में कोई आपका साथी हो, घर पे आप रह रहे हैं वहां आपके साथ उठने बैठने वाला कोई हो, तो सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए अपने साथियों के साथ। और आखिरी बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि खैरुल जिरान इंदल्लाह, समझ रहे हैं ना, पड़ोसियों में सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है, समझ रहे हैं ना, जो अपने पड़ोसी के लिए सबसे बेहतर है। पड़ोसियों में सबसे बेहतरीन पड़ोसी जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। तो पड़ोसी के साथ मेरे दोस्तों क्या है, अच्छा सलूक होना चाहिए। ये चंद बातें थी मैंने जो आपके सामने जिक्र की हैं, और एक बड़ी अहम हदीस जो आखिरी हदीस मैंने बताई आपको कि पड़ोसियों में से बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के यहाँ वो है जो अपने पड़ोसी के लिए सबसे बेहतर हो। तो इस पर हम अमल करें, समझ रहे हैं। ये चंद बातें थी सरसरी तौर पर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और हकीकत यह है कि पड़ोस का माहौल अगर अच्छा बन जाए तो आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार जिंदगी होगी। पड़ोसियों का आपस में कि अगर मेल मोहब्बत कायम हो तो बड़ी अच्छी बेहतरीन जिंदगी आपके उस मोहल्ले का, उस टोले का जो माहौल होगा ना, बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन आज अफसोस यह है कि सबसे ज्यादा झगड़ा मेरे दोस्तों पड़ोसियों से होता है, चाहे बच्चों को लेकर हो या किसी और बात पर हो, है ना। जो भी कोई मसला हो, खाना पीना बंद, बोल चाल बंद, समझ रहे हैं ना। बरसों जो है उनसे बातचीत नहीं, लेन देन नहीं, कोई मसला नहीं। सबसे ज्यादा जो बिगाड़ पड़ोस में क्यों हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम उनके हुकूक को नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हमें ये चीज पता नहीं है कि उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज एक मुसलमान समझ ले तो मेरे ख्याल से झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। हम बैठ के सुलह कर लेंगे। बच्चों में झगड़ा हुआ, हम बैठ के मसला हल कर लेंगे। भाई ठीक है, हमारे बच्चे की गलती है, हम उसको डांट दें, उसकी गलती है वो डांटे, मसला खत्म है, समझ रहे। मामूली चीज को लेकर के हम मसाइल बढ़ा लेते हैं। कहीं थोड़ी सी जमीन का मसला हुआ, किसी को सब्र नहीं, 1 बालिश जमीन, 1 फीट जमीन के लिए झगड़ा हो गया, बरसों बोलचाल बंद हो गया। अरे क्या करोगे यार उस जमीन को ले जा करके, कहाँ ले जाओगे, छोड़ दो। ठीक है, अगर आप ही का हक है तो उससे दस्तबरदार हो जाओ। और मैंने बताया था कि अल्लाह ताला उसके लिए, ऐसे आदमी के लिए जो अपने हक को छोड़ दे कहीं झगड़े में, तो उसको जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा। जो मैंने एक दिन अपने दर्स में जिक्र किया इस चीज को। तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, झगड़ा खत्म करिए और मामलात को, माहौल को अच्छा बनाइए। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए मेरे दोस्तों। बड़ी ताकीद आई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताकीद किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
पड़ोसियों के ताल्लुक से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर हो गया कि वरासत में कहीं ऐसा ना हो कहीं जिब्रील कह दें कि उनको भी हिस्सा दो। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच लिया था। इसका मतलब यह है कि बार बार जो है जिब्रील ने इस बात को रिपीट किया कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमें इन तालीमात पे अमल करना चाहिए। हम कोशिश करें कि पड़ोसियों से हमारे मामलात खराब ना हो, उनके साथ अच्छा सलूक हमारा हो, हमारा अच्छा बर्ताव हो। आप घर नहीं रहेंगे तो आप समझिए गार्जियन की तरह से वो आपके घर की रेख देख करेगा, वो नहीं रहेगा तो आप उसकी रेख देख करेंगे। यही फायदा है पड़ोस में बसने का, रहने का। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी बातें हम सुनाई जा रही हैं, अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को इसका पाबंद बनाए, इस पर हम अमल करें और अपनी ज़िंदगी में हम लाने की कोशिश करें। आखिरी बात मेरे दोस्तों, ख़ास तौर से पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है, सऊदी अरब के हालात भी इस वक्त जो है यानी मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा शर्किया, दम्माम, जुबैल, खबर भी इसकी लपेट में इस वक्त है। तो मेरी साथियों से गुजारिश है, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाया जाए कि हम जो है इसका लॉकडाउन की पालन करें और सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठें, बाहर ना निकलें। इसमें हमारी सेफ्टी, अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए और दूसरों की जान की हिफाजत के लिए इस मुल्क के साथ ताउन करें। आप इनके निज़ाम को मानें, इस आप ही के फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। आप नियम का उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा। और आप देखें कि मरीज़ जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कितनों की जो है मौत हो चुकी है। अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए और जल्द से जल्द रब्बुल आलमीन इसका खात्मा फरमाए। सारे लोग अपनी दुआओं में, खुसूसी दुआओं में क्या है इसके लिए इस ताल्लुक से दुआ करते रहें। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।